مجھے سعودی عرب میں رہتے ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ میں نے وہاں کی بھاشا میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ محنت مزدوری کرنا مجھے ہمیشہ سے بوجھ لگتا تھا، لیکن پتا کی مرتیو کے بعد جب ویوسائک جیون میں قدم رکھا تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ تب سمجھ آیا کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے اور روزی روٹی کمانا کتنا کٹھن ہوتا ہے۔ جب کام دھندے میں ہاتھ ڈالا تو ہر طرف سے دھوکے کا سامنا کرنا پڑا۔ زیادہ محنت کرنے پر بھی کم مزدوری ملنے لگی۔ کچھ سمے بیتا تو میں نے اپنی ماں سے ضد کی کہ مجھے ودیش جانا ہے۔ میری ماں میری ضد سے پریشان ہو گئی اور بولی، اگر تم چلے گئے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ جیسے ہی سعودی میں استھر ہو جاؤں گا انہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ انہیں دل سے منظوری دی یا نہیں، لیکن میری ضد کے آگے ہار مان لی۔ میں نے پیسے اکٹھا کیے اور ودیش جانے کا انتظام کر لیا۔ سعودی عرب آنے کے بعد شروعاتی کچھ سال میں نے کڑی محنت کی، لیکن مزدوری اچھی تھی اس لیے میں خوش تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دیش سے لایا ہوا اپنا سامان کھولا تو اس میں سے مجھے ایک پرانی کتاب ملی۔ وہ کتاب دیکھ کر میں چونک گیا۔ یہ کتاب میرے پتا کی تھی۔ میرے پتا کے پاس یہ کتاب میرے دادا کی آخری نشانی تھی۔ دادا کی مرتیو کے بعد میرے پتا نے اسے سہج کر رکھا تھا۔ اب جب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے تو ماں نے یہ کتاب میرے سامان میں رکھ دی تھی تاکہ اب میں اس کا خیال رکھوں۔ مجھے یہ کتاب اتنے لمبے سمے بعد ملی تھی۔ جب میں نے وہ کتاب کھولی تو دنگ رہ گیا۔ میں نے ترنت اسے پڑھنا شروع کیا اور پھر پڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ کتاب بہت کام کی تھی۔ اس میں کئی بیماریوں کے گھریلو علاج بڑے وستار سے لکھے گئے تھے۔ ایسی بیماریاں جن کے بارے میں لوگ بات کرنے میں بھی جھجکتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتے ہیں۔ اس کتاب میں ہر ایسی بیماری کا علاج موجود تھا۔ میرے دادا جی بہت مشہور حکیم تھے۔ انہوں نے اپنے سارے نسخے اس کتاب میں وستار سے لکھ رکھے تھے۔ اگر میں اس کتاب کے بل پر ایک حکیمی دواخانہ کھولتا تو مجھے اچھا خاصا لابھ ہو سکتا تھا۔ اب مجھے عربی بھاشا پر بھی اچھی پکڑ ہو چکی تھی اور میں نے تھوڑا پیسہ بھی بچا لیا تھا جو میری ماں کو میری شادی کے لیے چاہیے تھا۔ میں نے کچھ دنوں میں ہی ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور کچھ ضروری جڑی بوٹیاں خرید لی۔ میں نے کچھ دوائیں بنائیں اور انہیں بیچنا شروع کر دیا۔ شروعات میں میرے جان پہچان کے لوگوں نے دوائیاں خریدیں، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو فائدہ ہونے لگا میرے پاس مریضوں کی بھیڑ لگنے لگی۔ 2 سال کے بھیتر ہی میرا دواخانہ اچھی خاصی پہچان بنا چکا تھا۔ دواخانہ کھولنے میں جتنا پیسہ لگا تھا وہ 2 سال میں ہی واپس ہو گیا۔ اس دن شام ڈھل رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنی دکان کا سامان سمیٹا اور دوائیوں کی پڑیاں سنبھال کر رکھنے لگا۔ ویسے بھی شام کے بعد میرے پاس کوئی مریض نہیں آتا تھا۔ اگر میں دواخانہ کھلا رکھتا تو دن رات میری ضرورت بنی رہتی، اس لیے میں نے اپنے دواخانے کا ایک طے سمے رکھ لیا تھا۔ اس ویوستھا سے میرے دن اور رات بنا کسی تھکاوٹ کے شانتی سے گزر رہے تھے۔ میرا یہ دواخانہ پچھلے 2 سال سے سعودی عرب میں دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ میری دوائیوں میں ہر بیماری کا علاج موجود تھا۔ یہ دوائیاں سستی اور دیسی تھیں جن کا کوئی الٹا اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایشور نے بھی میرے ہاتھ میں ایسے شفا رکھی تھی کہ میری بنائی دوا ہر کسی کو آرام دے جاتی تھی۔ اس سمے میں دواخانہ بند کر رہا تھا کہ ایک عربی آدمی گھبرایا ہوا میرے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے بولا، مہربانی کر کے میری بیوی کا علاج کر دو، میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے۔ میں نے اس سے کہا، بھائی میں تو اس سمے دواخانہ بند کر رہا ہوں، یہ میرے آرام کا سمے ہے، تم صبح آنا۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے معافی مانگی۔ وہ ویکتی پریشان ہو کر میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، نہیں مجھے ابھی آپ کی ضرورت ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں، واپس بھی نہیں جا سکتا اور انتظار بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیوی کو لکوے کا جھٹکا لگا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کئی دوائیں آزمائی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر میں رک گیا۔ وہ عربی ویکتی بولا، میں بہت غریب ہوں اور اپنی بیوی کا علاج کسی بڑے اسپتال میں نہیں کروا سکتا۔ میں نے اسے دھیان سے دیکھا۔ وہ ایک نوجوان ویکتی تھا جس کی قد کاٹھی اور صحت اچھی تھی۔ اس کا پہناوا سادھارن تھا جسے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ امیر نہیں ہے اور شاید مجھے دوائیوں کے پورے پیسے بھی نہ دے سکے۔
पहले तो मेरा मन हुआ कि मैं उसे मना कर दूं, लेकिन फिर इंसानियत के नाते मैंने सिर हिला दिया। मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसे आश्वासन देकर मैं अपनी दुकान में वापस गया और लकवे के इलाज के लिए जरूरी दवा उठाई, फिर उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में वो उदासी भरे स्वर में अपनी बीवी की हालत के बारे में बताने लगा। वो बोला, मेरी बीवी बहुत चुस्त दुरुस्त और जवान लड़की है। वो सारा दिन बिना थके घर का काम करती रहती थी, लेकिन 2 दिन पहले उसे लकवे का ऐसा झटका लगा कि वो बिस्तर पर पड़ गई है। अब वो ना हिल सकती है, ना कोई काम कर सकती है। वो अरबी व्यक्ति रोते हुए कहने लगा, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे सारी जिंदगी बैठाकर खिलाता, लेकिन मेरी समस्या यह है कि वो बिल्कुल जवान है। उसके लिए यह बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो बिस्तर पर लाचार पड़ी रहे। वो अपनी हालत पर बहुत रोती है। हमेशा फुर्ती से काम करने वाली लड़की अब जिंदगी भर बिस्तर पर नहीं रह सकती। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, चिंता मत करो, अगर अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो यकीनन उसने मेरे हाथों में तुम्हारी बीवी के लिए शिफा भी रखी होगी। मेरी तसल्ली पर वो अरबी थोड़ा शांत हो गया। जब तक हम उसके घर पहुंचे रात हो चुकी थी। उसने मुझे घर के अंदर ले जाकर लाइट जलाई और सीधे अपने कमरे में ले गया। सामने बिस्तर पर एक जवान लड़की चादर ओढ़े पड़ी थी। उस अरबी ने मेरे लिए बिस्तर के पास एक कुर्सी रखी और अपनी बीवी की चादर ठीक करने लगा। उसी समय मेरी नजर उसकी बीवी पर पड़ी और उसे देखकर मैं ठिठक गया। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी त्वचा चमकदार और रंग दूध जैसी सफेद थी। वो वाकई बहुत जवान थी और मैं उसे देखता ही रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उस गरीब अरबी की बीवी इतनी राजकुमारी जैसी खूबसूरत होगी। मैं उसकी किस्मत पर हैरान था कि ईश्वर ने कैसे किसी किसी को ऐसी नियामत दी है। मेरे पास बहुत सी मरीज महिलाएं और लड़कियां आती थीं, लेकिन किसी ने भी मेरी इतनी गहरी नजरों को नहीं खींचा था। अचानक मेरी नीयत खराब होने लगी। मेरे मन पर शैतान का असर हावी होने लगा। वो लड़की तो वैसे भी मेरे रहमो करम पर पड़ी थी। मैं उसे देखता ही जा रहा था जब उस अरबी ने मुझे झकझोरा और मेरी तंद्रा तोड़ी। मैं चौंक कर होश में आया। उसने कहा, हकीम साहब, मैं आपको कब से बुला रहा हूँ, आप कहाँ खो गए हैं? क्या मेरी बीवी की बीमारी का इलाज मुमकिन है या कोई बड़ी चिंता की बात है? उसकी आवाज में घबराहट थी। वो मेरी खामोशी और गुमसुम रहने से परेशान हो गया था। उसे लगा कि मैंने उसकी बीवी की हालत में कोई बड़ी समस्या देख ली है, इसलिए जवाब नहीं दे रहा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, थोड़ी परेशानी की बात है। तुम्हारी बीवी को एक खास जड़ी बूटी की भाप देनी होगी ताकि उसकी लकवे की समस्या ठीक हो जाए, और साथ ही उसके शरीर की मालिश भी करनी होगी क्योंकि कमजोरी बढ़ रही है। भाप देना तो सच में सही इलाज था, लेकिन मेरी नीयत पर हावी हो रही गंदे ख्याल और गलत सोच की वजह से मैंने मालिश का झूठा इलाज भी इसमें जोड़ दिया। वो अरबी यह सुनकर खुश हो गया कि उसकी बीवी का इलाज संभव है। उसने कहा, ठीक है, आप इलाज करें और मेरी बीवी को पूरी तरह से ठीक कर दें। मेरी हिदायत पर उसने जल्दी से भाप के लिए सामान इकट्ठा किया। वो एक बड़ा बर्तन पानी से भरकर लाया और मेरी हिदायत के अनुसार उसे चूल्हे पर रख दिया। मैंने कहा कि पानी इतना गर्म करो कि उसमें से भाप निकलने लगी। जब पानी गर्म हुआ तो मैंने उसमें एक जड़ी बूटी डाल दी। अरबी भाप तैयार कर रहा था, लेकिन मेरी नजरें उसकी खूबसूरत बीवी पर जमी हुई थी। वो जागी हुई थी, लेकिन पूरी तरह से चुपचाप लेटी थी। मैं उसे बार बार देखकर बेचैन हो रहा था और मौके की तलाश में था कि किसी तरह वो अरबी वहां से हटे ताकि मैं मालिश के बहाने उसकी बीवी को छू सकूं। लेकिन वो अरबी हर समय मेरे साथ साथ ही रहा। मजबूर होकर मैंने उसकी मौजूदगी में ही कमरे को बंद कर दिया और उसकी बीवी को भाप दी। जब उसका शरीर अच्छी तरह भाप से तर हो गया तो मैंने उस अरबी से कहा, बस अब इतनी भाप काफी है, अब तुम यह सामान बाहर ले जाकर रख दो, तब तक मैं तुम्हारी बीवी की मालिश कर लेता हूँ। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, ठीक है, लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि उसने सामान वहीं कमरे के कोने में रख दिया और खुद मेरे पास आकर खड़ा हो गया। यह देखकर मैं घबरा गया।
वो अपनी खूबसूरत बीवी को मेरे साथ अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। वह बेचैनी से बार बार अपनी जगह बदल रहा था और बार बार अपनी बीवी को देख रहा था, जैसे बिना कुछ कहे उससे बात कर रहा हो। मेरी सवालिया नजरों के जवाब में उसने गंभीरता से कहा, आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं यहीं मौजूद हूँ। आप मेरी चिंता मत करें और मेरी बीवी का इलाज करें। एक डॉक्टर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मरीज के घर वाले मौजूद हैं या नहीं। उसके इस बयान से मुझे लगा कि वो मुझे संकेत दे रहा है। वो इतना भोला नहीं था जितना मैंने समझा था। उसकी वजह से मैं दुविधा में पड़ गया। उसके सामने उसकी बीवी को छूने का ख्याल मुझे नामुमकिन लगा। वो मेरी हर हरकत समझ जाता कि मेरी नीयत सही नहीं है। मैं बहाने से अपना सामान टटोलने लगा और थोड़ी देर बाद चौंकने का नाटक करते हुए उससे कहा, मालिश के लिए जो तेल चाहिए वो मेरे पास नहीं है। वह बोला, कैसा तेल चाहिए? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे जैतून का तेल चाहिए। उसी से मालिश की जा सकती है क्योंकि जैतून का तेल बहुत गर्म होता है और लकवे के मरीज के लिए गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैंने उससे कहा, मैं अगले दिन जैतून का तेल लेकर आऊँगा और उसे गर्म करके तुम्हारी बीवी की मालिश करूँगा। मेरी यह बात सुनकर वो अरबी नाराज़गी से बोला, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुद अपनी बीवी की गर्म तेल से मालिश न कर सकूं। उसने कहा, जैतून का तेल मैं खरीद सकता हूं और मालिश करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके जवाब पर मैं ठिठक गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि वो इस खूबसूरत लड़की का पति है और मेरी बातों से वो तंग आ सकता है। किसी डॉक्टर से इलाज कराना अलग बात थी, लेकिन एक हकीम का घर आकर इस तरह के अजीब और बेवजह सुझाव देना उसकी छठी इंद्रिय को जगा चुका था। अगर मैं उसकी बात तुरंत मान लेता तो वो यही समझता कि मेरी नीयत खराब थी। इससे मेरी बदनामी हो सकती थी और मेरा कारोबार भी बंद हो जाता। जो महिलाएं और लड़कियां मेरे पास इलाज के लिए आती थीं, वे भी सतर्क हो जाती। मैंने घबराकर कहा, नहीं, यह कोई आम मालिश नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं खुद तुम्हें ऐसा करने को कह देता, लेकिन लकवे के मरीज की मालिश उसके प्रभावित हिस्सों पर एक खास तरीके से की जाती है। वो तरीका केवल मुझे या मेरे जैसे किसी विशेषज्ञ को आता है। तुम इसे वैसे नहीं कर पाओगे। मैंने किसी तरह से उसे टाल दिया और उस दिन वहां से वापस आ गया। लेकिन मैंने महसूस किया कि वो अरबी मेरी नीयत को लेकर शक कर चुका था। वो परेशान लग रहा था और जिस व्यक्ति की पत्नी इतनी खूबसूरत हो, वो किसी दूसरे आदमी को इतनी आसानी से उसे छूने नहीं देगा। लेकिन मैंने भी अपनी सारी शराफत और परवरिश भुलाकर ठान लिया था कि किसी भी तरह उस अरबी की खूबसूरत पत्नी को एक बार पाना है। उस रात मैं देर से अपनी जगह पहुंचा और अगले दिन देर से अपनी दुकान पर आया। दुकान के बाहर दवाई लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उन्हें देखकर इस बार खुशी के बजाय मैं चिढ़ गया और अनमने ढंग से दवाएं देने लगा। मेरा दिमाग तो बस उस अरबी की बीवी के ख्याल में उलझा हुआ था और जल्दी से उस अरबी के घर पहुंचने की फिक्र में लगा था ताकि उसकी बीवी को हासिल कर सकूं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी और वह मुझे आसानी से मिल सकती थी। जल्दी जल्दी मैंने सारे ग्राहकों को दवा देकर निपटाया और अपनी दुकान बंद कर दी। दिन अभी बाकी था। मैंने भाप के लिए जरूरी जड़ी बूटियां और जैतून का तेल अपने थैले में डाला और उस गरीब अरबी के घर की ओर चल पड़ा। उसका घर काफी दूर था, इसलिए वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मैंने बेसब्री से दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने फौरन दरवाजा खोल दिया। शायद वह भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने मुझे अंदर बुलाया, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो बेचैन था और बार बार अपनी जगह बदल रहा था। जैसे पिछली बार मैंने फिर से उसकी बीवी को भाप दी। भाप देने से उसके शरीर से पसीना आने लगा। वो बोला, अगर मेरी बीवी सिर्फ भाप से ठीक हो सकती है तो मालिश की जरूरत नहीं है। मैंने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस तरीके में बहुत समय लगेगा और तुम इतना खर्च नहीं उठा पाओगे। मैंने जानबूझकर उसे इलाज के खर्च का एहसास दिलाया और वो चुप हो गया।
शायद वो सच में खर्च से घबरा गया था। मैंने भाप दी और फिर जैतून के तेल को हल्का गर्म किया। इस बार वो अरबी भाप का सारा सामान लेकर कमरे से बाहर चला गया। यह देखकर मैं खुश हो गया। मैंने जल्दी से उस लड़की को छुआ, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, अचानक उसके शरीर में हलचल हुई और जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मैं पीछे हटते हुए लड़खड़ा गया और मेरी इस हरकत से पास रखे कांच के गिलास गिरकर टूटने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। उस आवाज को सुनकर वो अरबी तुरंत भागता हुआ कमरे में आया। मैं हक्का बक्का होकर उस लड़की को देख रहा था, जबकि वो अरबी घबरा कर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? वो अपनी बीवी को देख रहा था, जो अभी भी बिस्तर पर चुपचाप पड़ी हुई थी। लेकिन मेरी जुबान बंद हो गई थी। जो कुछ मैंने देखा था उसे उसे बताने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अगर मैं कुछ कहता तो मेरी पोल खुल जाती। मैं घबराकर अपना सामान उठाया और वहां से निकल आया। वो अरबी मुझसे बार बार सवाल करता रहा, लेकिन मैं एक पल भी वहां नहीं रुका। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद उस अरबी की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि वो मेरी घबराहट देखकर रोने लगा था। मेरा दिमाग झंझना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसे मरीज से सामना हुआ था। मैं जैसे तैसे अपने घर पर पहुंचा और बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा दिमाग सोचों में उलझा हुआ था। जो कुछ मैंने उस अरबी के घर में देखा था, उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। गरीब अरबी की खूबसूरत बीवी के ख्याल में खोए खोए ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मैं रोज की तरह अपने दवाखाने पर पहुंचा और अपने काम में व्यस्त हो गया। काम की व्यस्तता की वजह से मेरे दिमाग से उस गरीब अरबी का ख्याल निकल चुका था। लेकिन जब दोपहर का दूसरा पहर हुआ तो वही अरबी मेरे पास आया। इस बार उसका चेहरा जोश और खुशी से दमक रहा था और उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने मुझे पुकारा तो मैं, जो एक दवा बनाने में व्यस्त था, चौंक कर उसे देखने लगा। उसे अचानक सामने पाकर मैं पल भर के लिए घबरा गया, लेकिन वो बोलने लगा, हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में बहुत बड़े इलाजगर हैं। लोग आपके बारे में जो कहते हैं वो बिल्कुल सच है। आपके हाथों में बड़ी बड़ी बीमारियों की शिफा है। मैं उसकी इतनी तारीफ और खुशी का मतलब नहीं समझ पा रहा था। वो जो अपनी बीवी के दुख में रोता रहता था, आज इतना खुश कैसे था? लेकिन उसके अगले वाक्य ने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, मेरी बीवी ठीक हो गई। उसने बताया, आपके दिए गए 2 बार के भाप और मालिश का इतना असर हुआ है कि मेरी बीवी आज सुबह उठी तो पूरी तरह ठीक थी। वो कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के ठीक हो जाने की इतनी खुशी हुई कि मैं तुरंत आपका शुक्रिया अदा करने चला आया। वो बार बार मुझे धन्यवाद कह रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके लकवे की मरीज बीवी मेरे इलाज से ठीक हो गई है। बाहरी तौर पर तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। मेरा मन हुआ कि मैं उसकी बीवी की सच्चाई बता दूं, लेकिन मैं चुप ही रहा। एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने बस चुपचाप उसका शुक्रिया स्वीकार कर लिया। फिर उसने मुझे मेरी फीस दी, जो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। इतनी बड़ी रकम देखकर मैं हैरान रह गया। तब वो अरबी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, मैंने यह पैसे अपनी बीवी के लिए सोने का कंगन खरीदने के लिए जमा किए थे। यह उसके लिए एक तोहफा होता, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तोहफे से ज्यादा जरूरी आपकी फीस है। आपकी मेहरबानी से मेरी बीवी चमत्कारी रूप से ठीक हो गई है। सोने का कंगन तो मैं फिर कभी पैसे जमा करके खरीद लूंगा। उसकी नेक नियत और अपनी बीवी के प्रति उसकी सच्ची मोहब्बत देखकर मुझे उस पर रश्क हुआ, लेकिन उसकी बीवी के बारे में सोच सोच कर मेरा मन कड़वाहट से भर रहा था। वो रात जो मैं उसकी बीवी के बारे में जान चुका था, मुझे भीतर से बेचैन कर रहा था। अगर मैं उस अरबी को सच्चाई बता देता तो उसकी खुशी एकदम खत्म हो जाती। मुझे लगने लगा कि वो अरबी अपनी बीवी के धोखे का शिकार हो रहा है। उसे सच्चाई का पता चलना चाहिए। फीस की रकम रखकर मैंने अचानक उससे कहा कि मैं उसकी बीवी से एक बार और मिलना चाहता हूँ। अगर वो अनुमति दे तो आखिरी बार उसका मुआयना करना जरूरी है। यह कहते हुए मैं थोड़ा झिझक गया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो अरबी मेरी वजह से पहले शक कर चुका था।
لیکن اس بار میری نیت صاف تھی اور میرا مقصد صرف اس کی بیوی سے بات کرنا تھا تاکہ اس چالاک لڑکی کا اصلی چہرہ اس کے پتی کو دکھا سکوں۔ میرے جھجک کر انومتی مانگنے پر وہ عربی گمبھیر ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کرنا، میری بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ میں اکثر اس کے لیے گھبرایا رہتا ہوں۔ جب کوئی اس کی طرف دھیان دیتا ہے تو مجھے وہم ستانے لگتا ہے۔ وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے بولا، آپ تو نیک نیت سے علاج کر رہے تھے، لیکن میں نے آپ پر شک کیا، اس کے لیے مجھے شرمندگی ہے۔ آپ جب چاہیں ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔ اس کی معافی سویکار کرتے ہوئے میں نے اسے دلاسا دیا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرے من میں بار بار وہ پل آ رہا تھا جب میں نے اس کی بیوی کو چھوا تھا۔ میں انہی وچاروں میں ڈوبا رہا اور جلد ہی اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ ویستتا کے کارن میرے 2-3 دن دواخانے پر ہی بیت گئے اور میں اس عربی کے گھر نہیں جا سکا۔ لیکن کچھ دنوں بعد جمعے کی نماز کے بعد جب میرے دواخانے پر مریض لگ بھگ نہ کے برابر تھے تو میں نے جلدی سے انہیں ان کی ضروری دوائیاں دیں اور دواخانہ بند کر کے اس عربی کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پہنچنے پر دروازہ اسی طرح عربی نے کھولا۔ اس نے مجھے دیکھ کر گرمجوشی سے سواگت کیا اور اندر لے گیا۔ اس کی بیوی رسوئی میں بہت خوبصورت کپڑے پہنے چائے بنا رہی تھی۔ بستر پر بیمار پڑی اس لڑکی کا سوندر اب سج دھج کر اور سندر کپڑوں میں اور بھی نکھرا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی، جبکہ میرے ہونٹوں پر انایاس ہی ایک طنز بھری مسکان پھیل گئی۔ اپنے پتی کے بلانے پر وہ مجبوری میں میرے سامنے آئی اور نظریں چراتے ہوئے ہلکا پھلکا ابھیوادن کیا، پھر جلدی سے واپس رسوئی میں چلی گئی۔ وہ عربی میری خاطرداری میں لگا ہوا تھا، جبکہ میں اس کی بیوی سے بات کرنے کا صحیح موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ ویسے تو میرا ارادہ یہی تھا کہ اس لڑکی کی سچائی اس کے پتی کے سامنے کھولوں گا، مگر میں ایک بار پہلے اسے سچائی جاننا چاہتا تھا۔ جلد ہی مجھے موقع مل گیا۔ اس عربی نے بڑے ہی پریم پوروک مجھے رات کے کھانے کے لیے رکنے کا آگرہ کیا تو میں رک گیا۔ وہ کھانے کی تیاریوں کے لیے بازار سے سامان لینے چلا گیا۔ اس کا مجھ پر بھروسہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر شرمندہ کر رہی تھی کہ میں نے اتنے اچھے انسان کی بیوی پر بری نظر ڈالی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کچن میں چھپی اس کی بیوی کو بلا کر کہا، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارا راز تمہارے پتی کے سامنے کھول دوں تو میرے سامنے آ کر سچ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ وہ لڑکی گھبرا گئی اور جلدی سے کچن سے نکل کر میرے سامنے آ گئی۔ شرم سے اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سوندر واقعی ایسا تھا کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا، لیکن اس بار میری نیت خراب نہیں تھی، شاید اس لیے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ جتنی معصوم دکھ رہی تھی اتنی تھی نہیں۔ اس کی چپی توڑتے ہوئے میں نے ہلکے سور میں کہا، اس دن میں نے تمہارا سچ جان لیا تھا۔ جب میں نے تمہیں چھوا تو تم نے جھٹکے سے میرا ہاتھ ہٹا کر مجھے گھورا تھا۔ تم پوری طرح ٹھیک تھی اور میری حرکت پر تمہارا سچ اپنے آپ کھل گیا تھا کہ تمہیں لقوہ نہیں ہوا ہے۔ اس کی اس حرکت نے مجھے جھکجھور دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے اس کا غریب پتی میرے پاس آیا تھا، رو رو کر مجھ سے اس کے علاج کے لیے چلنے کی ونتی کر رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے لیے جگہ جگہ بھٹک رہا تھا، لوگوں سے منتیں کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کا علاج ہو سکے، جبکہ وہ لڑکی صرف ناٹک کر رہی تھی۔ میرے شرم دلانے پر وہ اور بھی زیادہ سر جھکا کر چپ ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا، تمہارے پتی نے تمہارے لیے پیسے بچائے تھے اور وہ جلد ہی تمہیں سونے کا کنگن خرید کر دینے والا تھا، لیکن اسے وہ رقم میرے علاج کی فیس کے روپ میں دینی پڑی۔ میری اس بات پر اس نے آشچर्य سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر آنسو بہاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کے رونے پر میں نے نرمی سے پوچھا، تم نے یہ جھوٹا ناٹک کیوں کیا؟ تمہارا پتی تمہاری وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ روتا رہا۔ تب اس نے کہا، ایک دن میں سو کر اٹھی تو اچانک میری کمر میں درد ہوا اور میرے لیے ہلنا ڈلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے زور سے چلایا اور رونے لگی کہ میں ہل ڈل نہیں پا رہی۔ میرے پتی نے یہ سنا تو بری طرح گھبرا گیا اور مجھے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔
उसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं। वह बोली, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके व्यवहार में हमेशा एक तरह का रौब और गंभीरता रहती थी। लेकिन उस दिन मेरी चिंता में उसका नया रूप देखकर मैं हैरान भी हुई और अच्छा भी लगा। जब उसने मुझे सहारा देकर उठाया तो मैंने दाएं बाएं करवट लेकर कमर का बल ठीक कर लिया। मैं सही हो गई थी, लेकिन मुझे एक शरारत सूझी। मैंने सोचा कि पति को थोड़ा परेशान करूं। उसने आगे कहा, मैं बिस्तर पर गिरकर नाटक करने लगी कि मेरा शरीर बेकार हो गया है। मेरे पति ने यह सुना तो वह घबरा गए और तुरंत घर से बाहर चले गए। उनके अचानक घर से बाहर जाने पर मुझे हैरानी हुई। मैंने सोचा कि जब वो वापस आएंगे तो मैं उन्हें सच बता दूंगी कि यह मेरी शरारत थी। लेकिन जब वो लौटे तो उन्होंने बताया कि वो एक डॉक्टर से बात करके आए हैं जो मुझे देखने आने वाले हैं। यह सुनकर मैं सच नहीं बता पाई। उसे डर था कि अगर डॉक्टर आकर उसे सही सलामत देख लेता तो उसका पति उसे झूठा मान लेता। डॉक्टर आया, उसने सरसरी तौर पर जांच की और दवा लिखकर चला गया। इस तरह उसके पति की गंभीरता और चिंता को देखकर उसका नाटक लंबा खिंचता गया। वो सच बताने से डरने लगी कि कहीं उसका पति गुस्सा न हो जाए। वो बोली, मेरी मजाकबाजी मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन गई, लेकिन जब तुमने मुझ पर गलत नियत रखी और मुझे छुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुम्हारा हाथ झटके से हटा दिया। तुम्हें मुझे इस हालत में देखकर हैरानी हुई और तुम डर के मारे वहां से भाग गए कि कहीं मैं अपने पति को तुम्हारी नियत के बारे में न बता दूं। यह सब बताते हुए वो लड़की रोने लगी। उसने कहा, पति के डर से मैंने अगले दिन उठकर यही कहा कि मालिश और भाप से मैं ठीक हो गई हूँ। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, तभी उसका पति अंदर आया। उसे देखकर हम दोनों घबरा गए। वो अपना बटुआ घर भूल गया था, इसलिए पैसे लेने वापस आया था। उसने अपनी पत्नी की बात सुन ली। वो गंभीरता से अपनी पत्नी के पास गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम पहले दिन ही मुझे बता देती कि यह तुम्हारी शरारत थी तो मैं इतना परेशान नहीं होने देता। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगकर बात खत्म कर दी। मैंने शर्मिंदगी से उससे माफी मांगी और उसकी फीस उसे वापस कर दी। मैंने कहा, इस रकम पर मेरा कोई हक नहीं है। तुम्हारी पत्नी तो पहले से ही ठीक थी, मैंने कोई इलाज नहीं किया, मैं वहां से चला आया। इस बार उसने मुझे खाने के लिए भी नहीं रोका। बस जाते जाते उसने एक बात कही जो मुझे शर्म से जमीन में गाड़ देने के लिए काफी थी। तुम एक हकीम हो, अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहो। लोग भरोसे के साथ तुम्हें अपने घर ले जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनकी इज्जत पर हाथ डालो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।